Good morning, student. How how are you feeling? Yesterday, did you watch that video which we covered some topic from chapter chemical reaction and equation, and we covered the chemical reaction and the observation will take place during the chemical reaction. Can you tell me what is chemical reaction? Can you tell me the observation take place during the chemical reaction? Can you give me an example of the chemical reaction in which heat is evolved, your temperature is increased, your decreased? Can you tell me? Let's. But today we will start again the chapter chemical reaction and equation, and the topic we will try to cover first is chemical equation. Way to write the chemical equation and the way to describe the chemical equation means जो हमारा chemical equation है वो क्या है? What is chemical equation? Chemical reaction you have done yesterday कि मैग्नीशियम को हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ. तो ये एरो लगाया, दैट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. Yesterday we have done. This is the chemical equation, and we have written magnesium plus oxygen, that gives magnesium oxide. Before explaining the chemical equation, we have to know what is this Mg plus O2 and this M and this Mg magnesium oxide. First, this is the complete chemical reaction in which divide in two parts. As we know in mathematics, x plus y is equal to 3. So this is equal. It represent means the reaction is going on. Means ये जो portion है magnesium plus oxygen ये convert हो रहा है. This is going to convert, going to change into this. अब ये जो कौन सा change हो रहा है? This is the magnesium plus oxygen. These are the raw material required to form the equation, to form the reaction. What are these raw material? Means magnesium plus oxygen. These are the part of the chemical reaction is known as reactant. The part on the left side, the element on the left side, and the substance on the left side of the chemical reaction is known as reactant. So what is the reactant? Reactant are the substance which take part in chemical reaction. वो substance हैं जो chemical reaction में हिस्सा लेते हैं. Means we can say the raw material required to combine, required to break. जो chemical reaction में हिस्सा लेते हैं, जब तक मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन नहीं होगा, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को कंबाइन नहीं करेंगे, जब रॉ मटेरियल मैग्नीशियम और ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा. तो जो जिन्होंने रिएक्ट किया, जो कंबाइन हुए, दीज आर नोन एज द रिएक्टेंट्स. वो क्या कराएंगे? रिएक्टेंट कराएंगे. तो रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट आर द सब्सटेंस और द एलिमेंट व्हिच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन. फिर ये केमिकल रिएक्शन में पार्ट में फिर उसके बाद एक नया सब्सटेंस बना ऑन द राइट साइड. द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. जो बना नया सब्सटेंस उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट. प्रोडक्ट हमेशा कौन सी साइड बनता है? ऑन द राइट साइड. प्रोडक्ट is the part of the chemical reaction, a component of the chemical reaction which form during the chemical reaction, and the new substance will form during the chemical reaction. The new substance is formed during the reaction is known as
product. These are the two part component of the chemical reaction. First is reactant and second is product. And these chemical equation जो हमारी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दैट इज केमिकल मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब केमिकल इक्वेशन है क्या एक्चुअली, व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन? अब इसका हमने क्या लिख दिया, मैग्नीशियम लिखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है तो हमने क्या लिख दिया, इसका एक सिंबल लिख दिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दैट इज MgO. ये इतना बड़ा MAGN ऐसा ही मैग्नीशियम के बदले हमने इसका क्या लिखा, व्हाट इज दिस, दिस इज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम, दिस इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस इज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये जो मैग्नीशियम Mg plus O2, Mg is the short form of the magnesium, O2 is the short form of the oxygen and magnesium oxide is the short form of magnesium, MgO is the short form of magnesium oxide. तो ये जो हमने लिखा है 2Mg plus O2 that is 2MgO, ये हमने सिंबल लिखा है किसका, केमिकल रिएक्शन का. इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन. तो हमने एक रिजल्ट निकाला, हमने क्या निकाला, इसका इस मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये बनाया Mg plus O2 दैट इज MgO. तो हमने ये क्या लिख दिया, इसको क्या लिख दिया, इसकी शॉर्ट फॉर्म. किसकी लिखी हमने शॉर्ट फॉर्म, कैन यू टेल मी व्हाट, कि किसकी हमने शॉर्ट फॉर्म लिखी, इस केमिकल रिएक्शन की. जब केमिकल रिएक्शन की शॉर्ट फॉर्म लिखी जाए या सिंबॉलिक फॉर्म में लिखी जाए तो उसको हम बोलते क्या है, केमिकल इक्वेशन. इट मीन केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन क्या है हमारी, सिंबॉलिक शॉर्ट फॉर्म. जैसे कई बार हमारा कई को बड़ा बहुत नाम होता है, बहुत बड़ा नाम होता है, लेकिन बोलने में क्या होती है, प्रॉब्लम आती है, तो हम क्या बोलते हैं, उसका निकनेम बोल देते हैं, पप्पू है ना, कई बार छोटू बोल देते हैं. तो दिस इज इजी टू से, तो इजी टू राइट द केमिकल रिएक्शन इज, तो इजी टू राइट, दिस इज द नोन एज केमिकल इक्वेशन. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन, या शॉर्ट फॉर्म में केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन. अब मैंने यहां पर 2 लगाया है, ये 2 लगाया है, वी विल डिस्कस लेटर ऑन व्हाई वी पुट द 2 एट हियर. केमिकल इक्वेशन के 2 पार्ट बताए हमने, पहला एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट. रिएक्टेंट इज राइट ओनली ऑन द लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट विल राइट ऑन द राइट साइड, एंड दिस एरो is representing the reaction is going on, means the raw material है जो हमारा reactant है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. तो हमने लिखा 2Mg plus O2 that is 2MgO. तो this what is the way to write the chemical equation, way to write the chemical equation. केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हमने क्या लिखा, व्हाट हैव टू राइट, वे टू राइट. सबसे पहले हमने रिएक्शन लिखा, केमिकल रिएक्शन, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन दैट फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड. Magnesium react with oxygen to form the magnesium oxide. तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया सिंबॉलिक फॉर्म में. तो सिंबॉलिक मींस हाउ वी टू राइट द केमिकल इक्वेशन में करेगा. सबसे पहले वी राइट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट. सबसे पहले क्या लिखा, वे टू राइट द केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट वी राइट द सिंबल, राइट सिंबल. क्या लिखा हमने, राइट सिंबल. किसका, राइट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट, राइट सिंबल ऑफ element, and the each element or compound, symbol of element or compound. I think ये ना आपने नाम पढ़ा है, element और compound we will discuss later on. ये element और compound है क्या, we will discuss. First सबसे पहले हमने element का या atom का क्या लिखा, symbol लिखा, and each element or compound is separated by, हमने क्या करा, सेपरेट किया किसको, एलिमेंट मीन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों जो रिएक्ट किए उसको हमने सेपरेट किया किसे, प्लस और माइनस से. मीन वी हैव टू सेपरेट द एलिमेंट और कंपाउंड बाय किस साइन से, प्लस साइन से. तो दूसरा क्या है इसका, एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड सेपरेटेड बाय साइन प्लस
किससे सेपरेट किया? प्लस से सेपरेट किया। एलिमेंट और कंपाउंड सेपरेटेड बाय साइन ऑफ प्लस। प्लेस, हमेशा क्या करेंगे? प्लेस एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम क्या लगाएंगे? एरो लगाएंगे। और ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? द केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन, मीन केमिकल रिएक्शन हो रही है, मीन रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम होती जा रही है और प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ रही है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ, अब क्या है? दिस इज द मैग्नीशियम, जो हमारा क्या है? एक सॉलिड फॉर्म है। इसका मतलब व्हाट वी हैव टू राइट? द स्टेट। स्टेट कौन सी? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट किसकी? एलिमेंट की और कंपाउंड की। फिजिकल स्टेट ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट की या कंपाउंड की फिजिकल स्टेट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल स्टेट? फिजिकल स्टेट ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। फिजिकल स्टेट मीन जो दिखने में हमें नजर आता है। हमें क्या नजर आता है दिखने में? कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड, कोई भी सब्सटेंस हमें दिखने में कैसे नजर आता है? या तो लिक्विड होगा, अगर लिक्विड है तो एल लिखेंगे, लिक्विड एल। जो हमारा वाटर है, जनरली वी राइट एल। एल इज द सिंबल विच इंडिकेट द स्टेट ऑफ लिक्विड। फिर लिखेंगे एस। एस इज रिप्रेजेंट द सॉलिड। अगर सॉलिड है तो इट रिप्रेजेंट द एस। अगर पीपीटी, सम इनसॉल्युबल सब्सटेंस, कई बार हम सॉलिड को पीपीटी भी लिख देते हैं, इसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट, मींस दैट इज आल्सो द सॉलिड, पीपीटी। एंड थर्ड इज aqueous. What is the meaning of aqueous? अब aqueous is also in form of a liquid, but there is a big difference between aqueous and L. L is the liquid, means that is the pure form of water. केवल वाटर है, वाटर के अलावा कुछ नहीं है। अगर हम नमक मिला दिया पानी में तो जो स्टेट आएगी दैट विल बी लिक्विड स्टेट। है तो लिक्विड ही, दिखने में नजर आता लिक्विड है, बट वी विल नॉट राइट एल फॉर दैट वन। हमने पानी में नमक मिलाया, नमक पूरी तरह से घुल गया और घुलने के बाद अगर हमने उसे देखा तो हम उसे लिक्विड कहते हैं, लेकिन बट लिक्विड इज रॉन्ग, वी विल से फॉर दैट दिस इज द एक्वस। क्या बोलेंगे इसे? एक्वस बोलेंगे। एक्वस सॉल्यूशन मींस सम substance is dissolved in that water. It means we can say that is the salt solution. इसको क्या बोलेंगे? Aqueous. जो हमारा जनरली क्या होता है? Something is dissolved in it. Salt solution. Salt solution बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? Salt solution. Aqueous. And next is gas. For gas we will write G. G किसके लिखेंगे? That is for gas. These are the physical state we have to write at the time of writing the chemical equation. And the fifth part, which is compulsory or may not be possible everywhere, use some catalyst. ये जो केमिकल रिएक्शन के बीच में जो एरो है, यहां पर हम क्या लिखेंगे? यूज कैटलिस्ट। यूज कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट यूज करेंगे। ये कैटलिस्ट जनरली क्या करते हैं? व्हाट आर द कैटलिस्ट? Catalyst are the substance which is used to increase the rate of reaction, जो हमारे रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं, रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं विदाउट लूजिंग इटसेल्फ, अपने आप को लूज किए हुए। दे विल यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए। कई बार हम केमिकल रिएक्शन को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? हीट यूज करते हैं, ताकि रिएक्शन क्या हो जाए? कंप्लीटली हो जाए, वेरी फास्ट। यूज दिस वे वी कैन यूज दिस मेथड टू राइट द केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हमने क्या लिखा? सिंबल लिखा। फिर उसके बाद क्या? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में हमने एलिमेंट और कंपाउंड को क्या सेपरेट किया बाय यूजिंग प्लस, और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में हमने एरो लगाया, दैट विल बी सेपरेट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बाय प्लेसिंग एरो। और तीसरा, यूज द फिजिकल स्टेट, appearance of the element or compound means whether it is solid, liquid, aqueous. And I already explained L means liquid, that is the pure form of water, no salt solution in it.
एस या पीपीटी, पीपीटी इज द प्रेसिपिटेट। कई बार हम पानी में चीनी घोल दी और चीनी पूरी तरह से घुली या नहीं घुली, आफ्टर सम टाइम अगर हमने क्या देखा उसमें कुछ जम गया, जैसे हमने क्या करा, पानी में चीनी घोल दी, उसे सूरज में रख दिया, तो सनशाइन में रख दिया, तो आफ्टर सम टाइम वाटर क्या हो जाएगा, उसमें इवेपोरेट हो जाएगा। जब इवेपोरेट होने के बाद जो उसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस रहेगा, दैट इज द क्रिस्टल से बोलते हैं, कुछ बच जाता है, तो जो बच गया इनसॉल्युबल सब्सटेंस उसे हम क्या बोलेंगे, पीपीटी, एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन इज एक्वस सॉल्यूशन एंड यूज कैटलिस्ट। Fifth part is use catalyst to write the chemical equation. These are the way to write the chemical equation. अब मेनली क्या है, हम केमिकल इक्वेशन को डिस्क्राइब कितने तरीके से कर सकते हैं, हम केमिकल इक्वेशन को कितने तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? एंड द क्वेश्चन नाउ आई आस्क फ्रॉम यू, अगर मैंने पूछा कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ एल्युमिनियम, तो कैन यू टेल मी, क्या मुझे बता सकते हो आप सिंबल ऑफ एल्युमिनियम? अगर मैंने आयरन को वाटर के साथ रिएक्ट किया, वाटर यहां पर स्टीम है, जरा मिला लो, व्हाट आई राइट, इफ आई राइट आयरन रिएक्ट विद स्टीम दैट गिव्स आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, तो क्या ये बता सकते हो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, एंड प्लस में हाइड्रोजन, प्लस में हाइड्रोजन। कैन यू टेल मी व्हाट इज द सिंबल ऑफ आयरन, क्या बता सकते हो? व्हाट इज द सिंबल ऑफ स्टीम, बता सकते हो? व्हाट इज द सिंबल ऑफ स्टीम, कैन यू टेल मी व्हाट इज द सिंबल ऑफ आयरन ऑक्साइड, एंड यू हैव टू डू इट, इसे आपने करके दिखाना मेरे को। दिस इज you have to solve yourself, try yourself, try. Second, description of the chemical equation, chemical equation की description, chemical equation, बेटा जरा ध्यान से सुनिए, ध्यान से करिए, please go through these points thoroughly and it will clear your all point, all the concept, all question you can solve easily from your NCERT book, from any other sources. Chemical equation we can explain, we can describe in three different ways. First is explanatory method. Explanatory method. Second is word equation. Third is chemical, जो भी हमने पढ़ा, chemical equation. और इस chemical equation को भी हम आगे डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। एक है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसे हम क्या बोलेंगे, और स्केलेटल, स्केलेटल इक्वेशन, और इसे क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। These are the way to describe the chemical equation. First is explanatory method. Explanatory method क्या है? जैसे आपने previous class में have you done कि मैंने एक अभी भी मैंने start the class I told that what happened when magnesium react with oxygen, या when magnesium react with oxygen it form a magnesium oxide. हमने क्या कर दिया, explain कर दिया sentence की form में. When we say the chemical equation in sentence form mean magnesium when react with oxygen it form a compound magnesium oxide. This is the way to express the chemical equation in explanatory method. Explanatory method कहेंगे कि हमने सेंटेंस की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर दिया, और वर्ड इक्वेशन उस एक्सप्लेनेटरी मेथड जो सेंटेंस की फॉर्म में था उसको हमने किस में लिख दिया, वर्ड की फॉर्म में। वर्ड मतलब क्या लिखा हमने, when मैग्नीशियम, जो भी हमने लिखा था मैग्नीशियम react with oxygen that form magnesium oxide, magnesium oxide, magnesium oxide, ये लिखा था ऑक्सीजन, और ये क्या लिखा था, मैग्नीशियम। This is the word equation. This is the word equation. It is the way to represent the word equation of chemical equation. And second thing, last thing is chemical equation, जो अभी आपने पढ़ा क्या, symbolic representation. इसको हमने किस में लिखा था, Mg short form plus में O2 that gives MgO. This is the chemical equation.
These are the three ways to describe the chemical equation. First is explanatory equation, second is word equation, third is chemical equation. Explanatory way method is the way in which the chemical equation can be expressed in the sentence form. एक वाक्य की फॉर्म में अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसको हम वर्ड एक्सप्लेनेटरी मेथड कहते हैं, और उस एक्सप्लेनेटरी मेथड को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। मैग्नीशियम पूरा नाम लिखा, ऑक्सीजन पूरा नाम लिखा और प्लस लिखा है यूनिट वेरिएबल, और मैग्नीशियम ऑक्साइड पूरा नाम लिख दिया। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड इक्वेशन। इस वर्ड इक्वेशन को जो वर्ड फॉर्म में किस में लिख दिया, सिंबल में लिख दिया। किस में लिख दिया, सिंबल में। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दैट गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये सिंपल जैसे आपने पढ़ा बेटे, एल्युमिनियम को पढ़ा आपने। फॉर एग्जांपल जैसे हमने क्या लिखा, 11 लिखा, दिस इज द 11 को हम क्या लिखते हैं, सिंबल इसका क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू 11, दिस इज द सिंबल। अब जैसे क्या लिख दिया, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम इतना बड़ा नाम है, अब इसे हमने क्या लिख दिया, एल्युमिनियम, तो क्या लिख दिया, एल्युमिनियम का सिंबल क्या लिख दिया, एयर, क्या लिख दिया, एयर, दिस इज द सिंबल। एंड थर्ड इज, और केमिकल इक्वेशन को वी हैव टू डिवाइड इन टू पार्ट। जरा ये पॉइंट ध्यान रखना। There are two type of chemical equation. First is unbalanced and second is balanced. Now what is unbalanced? During the time of chemical reaction जो हमें equation मिलती है, the equation which we obtain during the chemical reaction, जैसी equation मिलती है उस equation को हम skeletal equation कहते हैं, और या वो equation may be balanced or may be unbalanced. वो बैलेंस है या नहीं है, that is the skeletal chemical equation. और जनरली skeletal chemical equation हमारी अनबैलेंस्ड होती है। वैसे हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन को ही skeletal equation कहते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, skeletal chemical equation, सॉरी, इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल बैलेंस, अभी करेंगे बैलेंस। बैलेंस आपने नाम सुना होगा, तराजू नाम सुना है, तराजू दोनों तरफ से, बीच में कांटा, सेंटर जो हमारा एरो है, ये राइट आपके हिसाब से, दिस इज योर राइट और दिस इज योर लेफ्ट। जब लेफ्ट और राइट ये क्या है, अनबैलेंस, ये क्या है, अनबैलेंस। अगर ये दोनों बराबर है, मींस जो मास यहां पर है वही मास इधर है। इफ द मास ऑन बोथ साइड बिफोर और आफ्टर द रिएक्शन, इसका मतलब लेफ्ट साइड मींस रिएक्टेंट का मास या प्रोडक्ट का मास दोनों क्या हो, बराबर हो। जब दोनों बराबर हो तो उसे हम बोलेंगे क्या, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और कई बार बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम दूसरा नाम भी देते हैं, व्हेन द नंबर ऑफ एटम, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ एटम, मैं आपको कैसे करेंगे बैलेंस वो बात बताते हैं। Mg+O2 दैट इज MgO। यहां Mg कितने हैं, एक, यहां Mg कितने हैं, एक, बैलेंस है, बराबर है। Mg कितने इसमें, दो, ऑक्सीजन कितने इसमें, दो, ऑक्सीजन कितने इसमें, एक, तो इसका मतलब ये बराबर है, नहीं है बराबर। इसका मतलब कितने, मैग्नीशियम के एटम यहां पर एक है, यहां मैग्नीशियम का एटम एक है, मैग्नीशियम एटम बराबर है। ऑक्सीजन के एटम यहां पर दो हैं, ऑक्सीजन के एटम यहां पर एक है, तो ये बैलेंस नहीं है। एटम दोनों तरफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट साइड, प्रोडक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेफ्ट साइड, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है। अगर नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है तो इट इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अगर मैंने बैलेंस कर दिया, यहां 2 और 2 हुआ कैसे, दैट विल बी 2 और 2। अब 9th में आपने पढ़ा ये 2 मैग्नीशियम के साथ भी है और ये 2 किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ भी है। तो यहां मैग्नीशियम के कितने एटम है, 2, यहां ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2, यहां मैग्नीशियम के कितने एटम है, ये 2 मैग्नीशियम के साथ भी है, ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी है। एंड यू हैव डन इन 9th क्लास आल्सो कि ये जो 2 है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों के साथ, यहां मैग्नीशियम कितने, 2, ऑक्सीजन कितने इसमें, 2। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड मींस कौन सी साइड, बोथ, ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्शन के बाद और रिएक्शन से पहले नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ क्या है, सेम है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर आपके एक क्वेश्चन होता है डिफाइन बैलेंस इक्वेशन, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगी, या बैलेंस इक्वेशन क्या होगी, देखो, नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड
reactant and product side are same before or after the reaction. यहाँ हम बोलते हैं number of atom on both side. What is the meaning of both side? Reactant and product. Number of atom on both side before and after the reaction will be same. This is known as balanced chemical equation. जैसे आपने कहा, अब इसे बैलेंस करने का तरीका we will do in next class and please be careful for that कि कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. और मैंने भी आपसे बोला था कि बेटा क्या नाम है कि मास ऑन बोथ साइड बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन विल सेम. मास ऑन बोथ साइड ये बोलते हैं मास ऑन बोथ साइड मीन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों का मास क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए. अब मास दोनों बराबर होना चाहिए, इसका मतलब अकॉर्डिंग व्हाई वी नीड टू बैलेंस इट. इसे कहते हैं कि मास बराबर होना चाहिए ना. बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज मास बराबर होना चाहिए. क्यों बैलेंस होना चाहिए? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है. व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? बता सकते हो व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? आपने पढ़ा है. Mass neither be created nor be destroyed. It remain same during the chemical reaction. मास जो है केमिकल रिएक्शन के दौरान हमेशा सेम रहता है बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन. व्हाई वी नीड टू बैलेंस इट? टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. हमें बैलेंस करने की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि हमने किसको फॉलो करना है? किसको ओबे करना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है. To follow the law of conservation of mass, we have to balance the chemical equation. कई बार क्वेश्चन आता है, why we balance it? And what is the balanced chemical equation? Balanced chemical equation: number of atom on both sides before and after the chemical reaction is same. And why we need to balance? To obey the law of conservation of mass. And what is the law of conservation of mass? The mass before and after the reaction is always same. इसका मतलब टोटल मास ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट. दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इज इट क्लियर? एंड दिस इज द वर्ड इक्वेशन एंड दिस. एंड हाउ वी कैन बैलेंस द केमिकल इक्वेशन? हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे? वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास. एंड प्लीज बी केयरफुल एंड वॉच केयरफुली. जो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने दिए देने हैं, जस्ट देखो ध्यान से. पहला आपने ये क्या करना है? इसको डिफाइन करना है. यू हैव टू डिफाइन इट. आपने क्वेश्चन क्या करना है? डिफाइन केमिकल इक्वेशन. दूसरा वे टू, ये वाला क्वेश्चन, वे टू राइट द केमिकल इक्वेशन एंड हाउ, व्हाट आर द डिफरेंट वे टू डिस्क्राइब द केमिकल इक्वेशन. व्हाट आर द रिएक्टेंट? रिएक्टेंट क्या है? डिफाइन रिएक्टेंट. ये दिखने में क्वेश्चन. डिफाइन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट. व्हाट आर द डिफरेंट, व्हाट आर डिफरेंट फिजिकल स्टेट and write their symbol, and write symbol. Be careful and be attentive, and next time we will do how we have to balance. इसका एक complete class होगी, and tomorrow we will discuss this, and you have to do revise and do these questions. For today it is over. Thank you.